Assalamu alaikum everybody, and so far we have covered our mid exams, and now we are heading towards the final exams. And I want you to prepare for the final exams in a proper way without just reading the things from the scratch and covering all the topics. I just want you to be very particular and very focused regarding the preparation and cover the topics that are really relevant to your final term exams, right? So these are the things and these notes I will share with you as well that you need to cover for the sake of final examinations. And keep it in mind that in the final exam there will be the same questions. Similar questions doesn't mean the same. The questions that are displayed in front of you will be asked, but the questions that will be asked will be almost the same that we are going to discuss in this lecture. So यहाँ पर आपके सामने मैंने एक ad डिस्प्ले किया है, read the ad and answer the given questions. तो आप रीड करोगे ऐड को. पाकिस्तान जैसे CRS company, the pioneer of social marketing in the country, promoting health related products for the last 3 decades, seeks a suitable candidate to fill the position of marketing office. The applicant should possess yani what it is about. Now you have made your idea. It is about the marketing office position, ठीक है. And the eligibility criteria that is mentioned over here वो क्या है. वो ये है कि आपने MBA किया हो या MBS किया हो from reputed university, FMCG marketing experience. Salary is negotiable. It means that they can give you a bit higher salary. So Nepal CRS company is committed to being an equal opportunity employer. It means that without reference, you can get a good job over there, and welcome applications irrespective of gender and race. So candidates for the above must be Pakistani citizens. Eligibility criteria are required to apply on or before 19th June with handwritten applications including testimonial, CV, and contract address. These are the things that you need to cover while giving your application to them. So only shortlisted candidates, the candidates they consider important for their company, will be asked for the sake of interview. यानी वो सिर्फ उसी को ही बुलाएंगे जो कि they consider appropriate for that particular position. ठीक है. तो आपने ये समझनी है बात कि आप सबसे पहले ये इतना ही ऐड आपको पेपर में गिवन होगा और आपने गौर से पढ़ना है कि क्या है. पोजीशन उन्होंने मेंशन नहीं की. देन क्या है कि जी आप the pioneer of social marketing in the country. तो आप pioneer कह सकते हो. That is relevant but they haven't mentioned details about the position. ठीक है. देन आपने देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं. देन उसके बाद आ जाता है कि आप अगर एलिजिबल हो तो आपने किस तरह अपनी सीवी वहां पर ड्रॉप करनी है. तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे अपने एग्जाम में आपको ऐड समझ आ जाएगी. समझ का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है. आफ्टर रीडिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. यानी आप क्वेश्चंस की तरफ दबाओगे. फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट फाइंड द क्लोजेस्ट वर्ड्स इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग. यानी आप इनोवेटर का वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है उन्होंने ऊपर, क्या उसमें आपको मतलब समझ आ रहा है जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया. देन कम्युनिकेटेड का मीनिंग आप क्या समझते हो. रिगार्डलेस का समझते आप क्या है मीनिंग, वो आप यहाँ पर सामने इंसर्ट करेंगे. ठीक है. आंसर तो अच्छा. यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. कम्युनिकेटेड का मतलब कम्युनिकेट करना ही है. बट आप ऊपर देखोगे इन विच कॉन्टेक्स्ट दे हैव यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं. तो आप वही मीनिंग लिख दो. अगर कोई वर्ड का थोड़ा डिफरेंट डेविएट कर रहा है जो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में है तो आपने वो मीनिंग इंसर्ट करना है. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है. सो द कंपनी इज कमिटिंग टू बी एन इक्वल एम्प्लॉयर एंड वेलकम एप्लीकेशंस. तो यहाँ पर आप क्या करोगे. आप क्या करोगे. आप सारा
जो है ना देखोगे कि आपको किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। सो देन क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, हाउ लॉन्ग हैज़ द कंपनी बीन रनिंग, यानी कब से कंपनी चल रही है। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पर ऊपर, ये कंपनी है ओन और कंपनी 3 डिकेड्स, ठीक है। तो आप ये मेंशन करेंगे अपने, सिर्फ ये ना पेपर में लिख देना 3 डिकेड्स, प्रॉपर सेंटेंस में लिखना कि द कंपनी इज बीइंग रनिंग सिंस दी फॉर द 3 डिकेड्स, ठीक है। So what are the academic qualifications required to apply for the post? So eligibility criteria will be mentioned over here, but not in the way कि आप सिर्फ simply लिख दोगे CV, cover letter, but you have to write the proper sentence that the academic qualifications required for the post are, and then you can write in the bullet points as well. So what is the deadline for applications? Application ki deadline that is mentioned in the advertisement, you have to mention that. Why can't all the participants get the opportunity to sit in the test interview? Because they will be only asking for the shortlisted ones, ठीक है। So then हम आगे बात करें तो ये आपने ज़रूर 2 से 3 एड्स आप इंटरनेट से देखो, आप किसी भी रिसोर्स से प्रैक्टिस करके आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। देन आपके फाइनल एग्जाम्स का क्या पार्ट होने वाला है, फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ 2 places नियर द सी, ठीक है, यूजिंग द वेन डायग्राम टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्लेस ए एंड बी। यानी आपको 2 प्लेसेस की डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, देन आपको वो ये कहता है कि आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें वेन डायग्राम को यूज़। देखिए वेन डायग्राम होती क्या थी, इफ़ यू हैव स्टडीड इन द मैथमेटिक्स इन मेट्रिकुलेशन, तो वो हमें ये कहती है वेन डायग्राम में आप यहाँ पर डिस्प्लेड है, आप क्या करते हैं, आप प्लेस ए और प्लेस बी को आपस में कंपेयर करते हैं। द थिंग्स डेट आर गेटिंग ओवरलैप्ड ओवर हियर, यानी जो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये देखो ना दोनों चीज़ें, 2 सर्कल्स एट अ पॉइंट दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो इस जगह पर आप जो सिमिलर चीज़ है वो लिखोगे, और यहाँ पर जो डिफरेंट है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपने लिख देनी है। ओके, so I hope it is clear so far, and you can write these things easily. Let me just check it out from the format page if it is allowing me. Anyways, so I hope you've got the basic idea कि आपने इसको इस तरह से कवर करना है, यानी वो सर्कल का पॉइंट जो आपस में कोइंसाइड कर रहा है वो सिमिलैरिटीज का है, और बाकी डिफरेंसेस का। अब इसको लिखना कैसे है, ये आपको वेन डायग्राम पेपर में प्रोवाइडेड होगी। तो हम प्लेस ए और बी को रीड कर लेते हैं, देन वी गोना आइडेंटिफाई दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर वाटर स्पोर्ट्स, दिस इज द परफेक्ट प्लेस एंड इट इज परफेक्टली सेफ फॉर ऑल एजेस। यानी आप देख रहे हो कि वाटर स्पोर्ट्स हो रही है, एंड यहाँ पर क्या है, बहुत परफेक्ट प्लेस है। देर आर अदर स्पोर्ट्स अवेलेबल टू इंक्लूडिंग टेनिस एंड बैडमिंटन। देर इज़ अ लाइव एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट के लिए ये है, लोकल थिएटर्स हैं, गुड क्वालिटी होटल्स हैं, लग्जरी है, एंड अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स एज वेल एज देयर। सो एक माइंड में अगर हमारे इमेज क्रिएट करें हम, तो ये इमेज क्या है, एक लग्जरियस होटल या लग्जरियस रेस्टोरेंट टाइप, जो कि हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है, for the sake of going there and enjoying the near if you're looking for the water sports, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। the water is perfect for swimmers, तो water यहाँ पर भी है, water यहाँ पर भी है। so why not improve your diving skills with our experienced instructors? तो ये instructors का point थोड़ा different है, यहाँ पर instructors provided नहीं थे, ठीक है, but are not expensive. They are situated on the cliffs and fantastic sea views हैं। There is a fireworks display on the beach once a month. ये चीज़ यहाँ mention है, यहाँ नहीं थी, तो ये difference आ गया। For historians, information on the area can be found in the museum, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हिस्टोरी, यानी ये हिस्टोरिकल म्यूजियम टाइप हो सकता है, कैन बी फाउंड इन द एरिया ऑफ म्यूजियम, यानी यहाँ पर हिस्टोरिकल म्यूजियम भी है। तो ये यहाँ का डिफरेंस है और एक यहाँ का भी डिफरेंस है। तो आप सिमिलैरिटीज इस वे में और डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करके पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी वेन डायग्राम में पेपर में लिखेंगे, ठीक हो गया। देन आ जाता है आपका मार्किंग। अच्छा, यहाँ पर आपका एक ऐसे जो है, जैसे आपका ऐसे इसेंशियल पार्ट है, 10 मार्क्स का है आपके पेपर में, और आपने इसको कंसीडर करना है कि आप सही ऐसे लिखो, और उसके लिए अपने प्रेपरेशंस कैसे करनी है।
फॉर दैट सेक आप डिफरेंट टॉपिक्स को, जैसे आप इंटरनेट से एक्सप्लोर करो, हेल्थ का टॉपिक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, एआई है, जैसे यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इन टॉपिक्स से रेलेवेंट पहले आप रीड करो दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, एंड देन स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। फिर आप उस पर लिखना खुद से शुरू करो। अच्छा जी, लिखना कैसे है, इस पर आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का आप एक मैप बनाओगे। मैप कैसे बनाते हैं, मैप ऐसे बनाते हैं कि जी यहाँ पर अगर हम इंसर्ट में जाएं और हम चेकआउट करते हैं कि आप अपने पेपर में आप बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप प्रॉपर अगर आप सर्कल्स और इस तरह से लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मैप क्रिएट करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से मैप होना चाहिए। जैसे अगर हम वेट अ मिनट, इंसर्ट में हम अगर जाते हैं इसकी शेप्स में और हम सर्कल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम वाइटन करते हैं। देन वी वांट जस्ट टू बी कॉपीड, हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। देन वी वांट अनदर सर्कल एंड इट गोज ऑन। तो ये इस तरह से आपका एक जो है ना सर्कल्स की फॉर्म में आप पेपर में बनाना चाहते हो बना लो। तो ये जैसे मैं बनाऊंगी आप इसी तरह से बेशक बना सकते हो, बट डोंट कवर द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ योर पेपर बिकॉज एक्स्ट्रा शीट्स वोंट बी प्रोवाइडेड। तो ये ना हो आप बड़े बड़े सर्कल्स बनाकर अपना जो है ना कंटेंट की बजाय आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर दैट सेक यू कैन हैव अ कंपास विद यू एज वेल। तो आप अब ये क्या करोगे, आपने जैसे ये सर्कुलर आपने मेन आइडिया लिखा इसके बारे में, एआई के बारे में, ठीक है। ठीक है, एआई के बारे में आप लिखना चाह रहे हो, आप इन इन द मिडिल ऑफ द सर्कल यू विल मेंशन द एआई, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई आप पूरा ही लिख दो बेशक, यहाँ पर लिखो आप रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो आप ये इसको मिडिल में रखोगे क्योंकि दिस इज योर बेसिक थीम। देन आप जो सब थीम्स हैं उनसे इसको इस तरह से जैसे आप एआई के बारे में बताना चाहते हो कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूजेज किस तरह से हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ स्टडीज है, फॉर स्टडीज आप लिख रहे हो यहाँ पर। तो ये आपका एक तरह से मैप ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, फॉर स्टडीज। फिर आप और एक लिख दो आगे, इफ यू वांट टू राइट सम मोर पोर्शन स्टडीज का है एक, मे भी यहाँ पर आपको ये शो नहीं हो रहा, नीचे ये शो हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्टडीज़ के यूजेज के लिए, और भी बहुत सारी फील्ड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हेल्थ केयर है, आपके हर एक फील्ड में इवन आजकल एआई यूज़ हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ द वे यू विल बी ड्राइंग अ मैप, और आप इस तरह से भी पेपर में बना सकते हो अगर आप चाहो तो। और एक और जो तरीका है वो ये होगा कि आप सिंपली क्या करो, सिंपलेस्ट वे में आप लिखो जी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई बुलेट पॉइंट्स में, यहाँ पर एक आपका बेसिक हेडिंग के तौर पर जैसे ये आ गया। देन आप उसको जो है नेक्स्ट एक बुलेट पॉइंट लिखो, हेल्थ केयर सेंटर, सो फॉर दैट यस, इसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स बनाना शुरू कर दो जैसे आपके बेसिक बुलेट पॉइंट्स हैं। तो आप अपने बुलेट पॉइंट शुरू कर सकते हैं देन, कि यानी आपने मेन टॉपिक लिख दिया और उसके बाद ये हमारे आगे बुलेट पॉइंट्स में अपने सब टॉपिक्स जो जो आप कवर करोगे अपने ऐसे में, ये नहीं हो कि इधर इतने सारे टॉपिक्स आपने लिखे हुए हों और जी आपने ऐसे में तो वो कवर ही नहीं किए थे। तो you have to be very sure about it that the outline that you're providing in the mind mapping or in the start of your essay must cover the whole content of your essay and must not be there anything that is apart from that, ठीक है। तो आपका जो ऐसे होगा वो टू साइड्स ऑफ द पेज पर ही मैं कवर करवाऊंगी फाइनल एग्जामिनेशन में, बहुत लंबे लंबे लेंथी एसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी वो कैब यूज़ करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, पेपर चेकिंग क्राइटेरिया मैं अब आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं। Marking of your answers will be based on your correct English language usage, written in a proper format and organizing ideas logically. यानी आप कभी भी अपना आंसर लिख देते हो ना ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि यही ठीक है। अगर आप 7th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह लिख दोगे ऐसे, तो वो आपका इनकरेक्ट है फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे लिए सिर्फ ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए आप ऐसे ग्रामेटिकल, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके सही हो, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंसेस,
आपके करेक्ट हों। अच्छा, आए कोई बच्चा स्मॉल ना लिखे, इट्स रियली बैड इम्पैक्ट कि इस लेवल पर भी किसी स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि आए हमेशा कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं होता। तो आपकी सारी पेपर की जो है ना अच्छा जो एक इमेज है वो सारी ख़राब हो जाती है उससे। देन वोकेबलरी यूजेज, आपकी वोकैब बच्चों वाली ना हो, बिल्कुल जैसे लिखते हैं ना आई AI इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट, तो ऐसा नहीं करना। आपने अपनी वो कैप बिल्ड करनी है। आप रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स, डो न्यूज़पेपर पर जाएं, आप ओपिनियन आर्टिकल्स रीड करें, इट इज़ अप टू यू आप कैसे इंप्रूव करते हैं वो कैप, बट आपने इंप्रूव करनी है। ठीक है। देन आ जाता है आपका, ये आती थी आपकी आउटलाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैप जिसको कहते हैं, यानी सब चीज़ें जो आप अपने ऐसे में कवर करने वाले हो वो आप इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दो। बल्कि ज़्यादा बेहतर यह कि आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम कम होगा। तो ये आप इन सर्कल्स ना बनाएं, आप सिर्फ आउटलाइन बना दें। बेसिक ऊपर टॉपिक, देन सब टॉपिक, और देन उसके जो है ना आप बुलेट पॉइंट्स मेंशन करो, सिंपल। 3 मार्क्स की ये है। देन 7 मार्क्स का आपका ऐसे है। ऐसे कि इस तरह के टॉपिक हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे में आना क्या चाहिए, ऐसे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोड्यूस टॉपिक, इट डजंट मीन आप बताओ एआई इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इंक्लूड्स कंप्यूटर भी, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज एआई। ठीक है, तो आपने डिफाइन किस टर्म को करना है और किसको नहीं करना, यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद दैट। आपको इंट्रोडक्शन लिखना आना चाहिए। देन इंट्रोडक्शन के बाद आपके आ जाता है बॉडी ऑफ दैट, ऐसे इंट्रो लिखते हो आप। देन आप लिखते हो उसकी कंटेंट या बॉडी। देन आपकी आ जाती है कंक्लूजन। तो इससे ज़्यादा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपरली कंक्लूड करो। अच्छा, प्रॉपर मैनर में कंक्लूड का मतलब ये है कि कंक्लूजन में कोई नया आइडिया ना आए। बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में आप डिवाइड कर सकते हो इसको, 3 में आप डिवाइड, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने पैराग्राफ्स इसमें इंक्लूड करते हो। बट हर एक पैराग्राफ में आप एक आइडिया बताओगे। जैसे अगर आप पैराग्राफ 1 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज बताना चाह रहे हो, साइबर सिक्योरिटी के जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें, ठीक है, तो ये ना हो कि आप वहाँ से जंप करो, आप सिर्फ उसी को ही डील करो। देन आप सेकंड पैराग्राफ में किसी और डिपार्टमेंट के बारे में मेंशन कर सकते हो, किसी और फील्ड के बारे में मेंशन करो। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल बी मूविंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। और आप इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज़ करोगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, ट्रांजिशंस प्रोवाइड करती हैं ये आपको, जैसे आप यूज़ करते हो हैंस फोर्थ। ठीक है, देन आप एक और यूज़ करते हो देयर फोर। तो इस तरह के वर्ड्स पेपर में ज़रूर आप यूज़ करो। इट सीम्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से ऐसे अपना लिखना है। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ रीच करके ऐसे आप इनेबल नहीं हो जाते कि आप पेपर में बैठ के लिखो। आपको प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस करो एंड देन राइट द ऐसे, कि आप उस पर लिखना शुरू करो। अच्छा, अब ये नेक्स्ट आपका ये हो सकता है कि एक पार्ट हो, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर एंगेज्ड बाय समवन टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ। यानी आप अब डिस्क्राइब कर रहे हो एक ऐसी सिचुएशन व्हेन समवन इनकरेज्ड यू, किसी ने आपसे कहा कि ये काम आप इस तरह करें, और आप बड़े इंकरेज हो गए उस बंदे से। ठीक है, तो आपने 200 वर्ड की लिमिट होगी इसकी, और आप इसके बारे में लिखोगे। डिस्क्राइब का मतलब आपने सिंपली उसको डिस्क्राइब कर देना है, इवेंट को। डिज़ाइन अ सर्वे क्वेश्चनेयर। तो आप एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करोगे। क्वेश्चनेयर डिज़ाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक प्रॉब्लम गिवन होगी और आप क्वेश्चनेयर बनाओगे। कैसे? This the percentage of overweight obese children in large cities have been steadily increasing. ठीक है, and how approaches and now approaches 25%, since we know that childhood obesity tends to lead to adult obesity, which is linked to chronic diseases like diabetes, heart disease, strokes. In order to solve this problem, we should find out the possible reasons that have this issue. तो हमें ये सब reasons देखनी है कि ये डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक्स है। ठीक है, तो आप इस सब चीज़ों को कंसिडर करोगे कि आपका जो है ना क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन भी कर दिए हैं। वी शुड फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस दैट आर कोज। अब आपको ये जो इस लाइन में सारी बात वो प्रोवाइड कर रहा है कि आपने ये जो प्रॉब्लम है ओबिसिटी वाली, इस पर आपने रीजंस को देखना है कि कौन सी रीजंस है जो कि ये रीजन प्रॉब्लम को कोज कर रही हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर आप क्वेश्चनेयर बना रहे हो, देखो क्वेश्चनेयर में हम करते क्या है, क्वेश्चनेयर या सर्वे में हम करते हैं, सर्वे में, ठीक है, सर्वे में हम करते हैं जी डाटा कलेक्ट। डाटा कलेक्ट करते हैं हम अपनी पॉपुलेशन से।
ठीक है, क्या करते हैं हम, डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन यानी लाहौर की है सबसे पहले आप देखोगे, या पाकिस्तान की। तो लाहौर की पॉपुलेशन में भी जैसे आप सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी को ही कंसिडर करना चाह रहे हो कि हाँ भाई मैं जीसी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये चेक करना चाह रहा हूँ, बल्कि इन्होंने अगर चिल्ड्रन यहाँ पर मेंशन किया तो हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं कंसिडर करेंगे, चिल्ड्रन है तो आप स्कूल को कंसिडर करोगे। ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक आपने भी नहीं करनी कि आपके पेपर में चिल्ड्रन लिखा था ऑफ यूनिवर्सिटी को। आप बताओगे कि आप किस पॉपुलेशन से, आप स्कूल्स हैं, स्कूल्स में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप स्कूल्स कौन से, जैसे आप स्कूल करना चाह रहे हो मेंशन लाहौर में प्राइवेट हैं या पब्लिक सेक्टर के सारे स्कूल्स हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के सारे स्कूल्स कवर कर रहे हो तो उनके भी नेम्स पर्टिकुलरली मेंशन करो विच यू हैव covered and through which you have gathered data। तो इस तरह से आप अपने डाटा का पहले तो बताते हो कि आप कहाँ से गैदर करें। क्वेश्चनियर कैसे बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट है। क्वेश्चनियर आपने इस तरह बनाना है कि आप क्वेश्चंस में पूछो अपने ऑडियंस से कि जी क्वेश्चन सबसे पहले आप पूछो कि व्हाट दे डू दे ईट फ्रीक्वेंटली इन आउटसाइड। ठीक है, डू दे ईट आउटसाइड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली तो आप देखते हो कि आप फ्रीक्वेंटली क्या बाहर खाते हो। ये क्वेश्चन आपको क्या बताएगा, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्या आपकी ऑडियंस बाहर जब खा रही है यानी जंक फूड ईट कर रही है, तो आप इसमें ऑप्शंस उनको ये प्रोवाइड कर सकते हो जी यानी जंक फूड, हैमबर्गर्स, और इस तरह से आप मेंशन करोगे कि डू डू यू ईट, बल्कि यहाँ पर सिंपल लिखो डू यू ईट जंक फूड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो जंक आप मेंशन करोगे यहाँ पर। और अगर उनका आंसर यस नो होगा, या इस तरह से आप एमसीक्यू करना चाह रहे हो, यस नो में सिंपल आंसर लेना चाह रहे हो, तो आप डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लोगे। यस है और नो है इसका सिंपल। अगर आपके पास यस ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कि जंक फूड की वजह से ओबेसिटी हो रही है। ठीक है, देन आप दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बना सकते हो कि डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज का पॉइंट ऐड करो। तो ये आपके जो क्वेश्चनियर्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको किस तरह लीड करेंगे, आपको सिंपल एक आइडिया बताएंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो ओबीसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है डू यू एक्सरसाइज। अगर यहाँ पर नो आंसर है तो इट मीन्स ये भी रीज़न है, और रीज़न सिर्फ एक नहीं मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस बनाओगे जो कि आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। अब पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं बनाना जो कि ऐसा लगे बिल्कुल ही डिफरेंट था आपके टॉपिक से। ठीक है, तो आपका पेपर के जो क्वेश्चन फॉर्मिंग है वो इस तरह से होगी। तो उन्होंने आपको कहा था डिजाइन अ क्वेश्चन सर्वे टू फाइंड द रीजंस तो द प्रॉब्लम। तो आप उन्हीं उसी तरह के क्वेश्चंस लिख दोगे पेपर में। 5 मार्क्स का है तो 10 आइटम्स आपने यानी 10 क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन ही सिंपल बना लो यस नो वाले। अगर आपको पेपर में एमसीक्यू कह देते हैं फिर आपको एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे। तो ज़रूर आंखें खोल कर देखना कि क्वेश्चंस कहे हुए हैं या एमसीक्यूज कहे हुए हैं। ठीक है, ये ना क्वेश्चंस की जगह आप एमसीक्यू बना दो और फिर आपको हो कि हमारे मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए। देन आ जाता है मार्क डिटेल्स में मेक अ डिटेल सीवी इम्प्रेसिव। आपने ये जॉब ऐड देखा, ठीक है, अब आपको उन्होंने कहा कि भाई इस पर आप सीवी बनाओ और सीवी ड्रॉप करो। ठीक है, सीवी और कवर लेटर का मैंने आपको थोड़ा पहले भी आइडिया एक बताया था। वॉलंटियर्स नीडेड, कॉलिंग ऑल वॉलंटियर्स वी नीड योर हेल्प। जैसे रोनेट is looking for dedicated individuals to join us in our mission to make a positive impact in our community. If you have a passion for education and technology and you want to make a meaningful difference in your community, यानी अगर आपका पैशन है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में तो आप क्या, अगर आप कम्युनिटी में सर्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप हमें कांटेक्ट करो। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि दे आर नॉट गिविंग यू सम पेड अपॉर्चुनिटी, रादर यू मे आस्क इन द डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस टुडे। बट उन्होंने यहाँ पर जो मैंशनिंग की है वो ये हमें यही बताती है कि ये अनपेड है। ठीक है,
अब आगे आप क्या करोगे, आप अपनी ईमेल, अपना सीवी कैसे बनाओगे। सीवी आप बनाओगे, अपनी एजुकेशन लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मेटिंग ऑफ द सीवी मैं आपसे एक इमेज ज़रूर शेयर कर दूंगी इन योर ग्रुप कि फॉर्मेट सिंपल सीवी का कैसा होता है। एजुकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो लिखो, वरना ना लिखो, ठीक है। स्किल्स लिखोगे आप। एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप समराइजिंग की वे में स्टार्ट में लिख दोगे समरी, ठीक है। समरी सीवी में जो आप लिखते हो, जैसे आपने लिखी, इफ़ यू हैव अ पैशन तो एंड फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो आप लिखोगे आई एम रियली पैशनेट, या फिर आई एम रियली डेडिकेटेड, ठीक है। पैशनेट towards the um, and I'm really passionate in educating others, ठीक है, educating others, ठीक हो गया। एंड आई हैव मोनिटर्ड, आप लिख सकते हो अगर कोई आपने कोई प्रोजेक्ट मोनिटर किया है, ठीक है। मोनिटर्ड मैनी प्रोजेक्ट्स इन दिस रिगार्ड इन विच आई यूज टेक्नोलॉजी टू मेक द मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ अदर्स। तो आपकी ये समरी होगी जो कि एक आइडिया दे देगी एम्प्लॉयर को कि हाँ इस इंसान ने किया, ना कि आप सिंपल ये लिखो आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू एजुकेशन, आई नो टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं लिखना। आपने सिंपल लिखना है कि जी आई एम रियली पैशनेट इन एजुकेटिंग, हाँ साथ रीजन, ऐसे सिर्फ नहीं, पैशनेट, आई एम पैशनेट एंड आई हैव मॉनिटर्ड सो मैनी प्रोजेक्ट, एज आई हैव, बल्कि इसको यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, एज आई हैव मॉनिटर्ड, ठीक है। तो ये आपका रीजन देता है। आप सिंपली को मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो वो कोई यूजलेस चीज़ है जब तक आप रीजंस नहीं प्रोवाइड करते या सो फार आपने कोई काम किया है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो इस तरह से आप एक समरी छोटी सी लिखोगे 3 to 4 लाइन्स की, कितनी, 3 to 4 लाइन्स की। और देन आप क्या करोगे, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात करोगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दोगे। प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ द सीवी विल बी शेयर्ड विद यू इन द ग्रुप एंड यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। बट इस ऐड से ही रेलिवेंट आपने पेपर में अगर आप कोई भी ऐड आ जाता है तो उससे रेलिवेंट आप सीवी बनाओगे, ठीक है। तो हॉबीज में ये ना लिख देना रीडिंग डांसिंग सिंगिंग, बिकॉज यहाँ से रेलिवेंट नहीं है वो। फिर आ गया आपके सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको पेपर में कभी भी मैं ये नहीं पूछूंगी व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, आपको पेपर में होगा क्वेश्चन गिवन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। 10 मार्क्स का 10 सेंटेंसेस होंगे कि किस तरह से आप इसको, जैसे दिस प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स इंजॉय रीडिंग बुक्स, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इस तरह से अ पर्सन हु रिकॉग्नाइजिंग हिज मिस्टेक्स, ये यहाँ पर रिकॉग्नाइजेस होना चाहिए था, रिकॉग्नाइजिंग लिखा मिस्टेक से है। अ पर्सन हु रिकॉग्नाइजेस हिज मिस्टेक्स, ठीक है। तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस, आप लिख सकते हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन से आते हैं, वाइल आ जाता है, ठीक है, ऑल्दो आ जाता है। तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग है, इनको यूज करते हुए आप इसमें एक अच्छा सा सेंटेंस कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करोगे। ये मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट फाइल शेयर करूंगी, आप इसको कोशिश करना कि आप इसको सोल्व करो। और अगर आपको कोई इश्यूज आता है देन यू मे आस्क फ्रॉम मी। यू कैन स्टे, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस है तो और यू मे लीव, ठीक है, और यू मे लीव, तो ये प्रॉपर एक कंपाउंड सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। देन है आपने एक पैराग्राफ आपको प्रोवाइडेड है, आप इसमें इंसर्ट करोगे वो वर्ड जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। जैसे इन्वेंशंस टेंड टू चीपर, तो टेंड टू बिकम चीपर हो सकता है, बिकम क्या होगा यहाँ पर, वर्ब होगा। इस तरह से आप जैसे कंजंक्शन उन्होंने कहा है तो एक कंजंक्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इंसर्ट करोगे। जैसे मैंने बिकम बोला तो यहाँ पर बिकम वर्ब है। देन दे आर, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टच डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स आर मच एक्सपेंसिव देन दे यूज टू बी। दे आर, यहाँ पर एक कंजंक्शन आएगा, ऑफर इनॉर्मस एडवांटेजेस। सो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आ सकता है वो आप देखोगे। कंजंक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग, तो वो आप इंसर्ट करोगे। देन हाँ जी, तो ये आपका सारा इस तरह से ऑलमोस्ट आपका जो फाइनल टर्म है वो स्ट्रक्चर्ड होगा।
फॉर द सेक ऑफ एसेज आई विल रियली रिकमेंड कि आप अपने पास जो है ना आज से ही डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन आर्टिकल पढ़ो और हाई वोकेबुलरी का एक रजिस्टर पर नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि आपकी वोकैब जब भी, अच्छा पेपर चेकिंग क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने ये सारा जैसे एक बच्चे का पेपर पढ़ लिया स्टूडेंट का, ठीक है, और मुझे उसमें कोई भी नया वर्ड या कोई भी डिफरेंट फ्रेज नहीं नज़र आया जो कि एज अ स्टूडेंट मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट किसी स्टूडेंट की राइटिंग नज़र आना, तो मुझे अगर ऐसी राइटिंग नहीं नज़र आती तो उस पेपर की मार्किंग थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो हमें इस चीज़ पर विलिंग कर लेते हैं कि दे हैव read something and they have improved their writing skills. वो पता कैसे चलता है, वो through their vocabulary, through their grammar, through their आइडिया कन्वेइंग, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हाँ स्टूडेंट की ग्रिप लैंग्वेज पर अच्छी है और उसकी मार्किंग हम अच्छी करते हैं. सो आई होप नाउ यू गॉट द मेन आइडिया दैट हाउ यू आर रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर फॉर द सेक ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस. ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क एंड यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एज वेल.